morning, students. Today, that is 2nd October, we celebrate birth anniversary of Mahatma Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi was a Mahatma, not just for Indians, but for the rest of the world too. What Gandhiji did throughout his life is there in the textbooks. You have learned them in your history classes, isn't it? But how are we going to imbibe his principles, his philosophy in our daily life needs to be understood. Because with slightest provocation, we are ready to fight. We are ready to argue. We forget about the teachings of non-violence that we have read in our textbooks, which were taught to us by our teachers, isn't it? Many may think that his philosophy worked in a different era, which is not relevant in the present time. However, we need to realize that more we move away from Mahatma's principles, that is non-violence, truthfulness, honesty, we make this world a difficult place to live in. Therefore, students, today as we celebrate birth anniversary of Mahatma Gandhi, let us take a moment to salute this brave soul and remember his contribution to the society. Let us all imbibe Mahatma Gandhi's principles and teachings in our daily life. Let us remember Mahatma Gandhi for his great contributions towards the independence of India. Thank you. Jai Hind. As we all know that we are gathered here to celebrate an important occasion called Gandhi Jayanti. Today is 2nd October, the 152 birth anniversary of Mahatma Gandhi. We celebrate this day with great enthusiasm every year to pay tribute to the father of the nation as well as remember his courageous deeds on the way of independence struggle for the country from British rule. Lighting of the lamp. Mahatma Gandhi was biggest and great patriotic in India. He was born on 2nd October 1869 in Porbandar, Gujarat state. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi and he is known as the father of the nation. Truth, peace and non-violence and lead our country to an incredible nation. Jai Hind, thank you. महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के अनन्य पुजारी थे और अहिंसा के प्रयोग से उन्होंने सालों से गुलाम भारतवर्ष को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करवाया था। गांधी जी जब तक जीवित रहे तब तक देश के उद्धार के लिए कार्य करते रहे। गांधी जी को भारतीय इतिहास के युग पुरुष के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। आज सारा विश्व उन्हें श्रद्धा से नमन करता है। गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर सारा संसार सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाता है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Now teachers of Vidya Vihar School will present a song before you. हमें आजादी बिना कड़क बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना कड़क बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हमें आजादी बिना कड़क बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे
जब डंकी लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर निगली तूने चढ़ाई, मारे फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना कड़क बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, शतरंज बिछा कर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था कि मुश्किल है फिरंगी को हराना, टक्कर थी बड़ी जोर की दुश्मन भी ताना, पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना, मारा वो कस के गाँव की उल्टी सदी की चाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना कड़क बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। साउथ अफ्रीका में भारतीयों को शूद्र समझा जाता था, उन्हें कुली बुलाया जाता था। जल्द ही गांधी जी को भी यह अनुभव सहना पड़ा। गांधी जी रेलवे के प्रथम श्रेणी से प्रिटोरिया जा रहे थे। बीच में एक यूरोपियन यात्री वहां दाखिल हुआ और उसने वहां गांधी जी को देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकल जाओ यहाँ से। मेरे पास यहाँ का टिकट है और मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। लेकिन ये हक सिर्फ गोरू के लिए है। तुम अभी यहाँ से निकलो वरना मुझे स्टेशन मास्टर से शिकायत करनी पड़ेगी। मेरे पास इसी श्रेणी का टिकट है और मुझे यहाँ बैठने का पूरा हक है। उस आदमी ने स्टेशन मास्टर से शिकायत की। इस कुली को बाहर निकालो और तीसरे दर्जे में डालो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है। गांधी जी ने उससे बहस करने की कोशिश की पर उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। ए मिस्टर, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? अब मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। पुलिस वाले ने गांधी जी को उनके सामान के साथ बाहर ढकेल दिया। ट्रेन चली गई। गांधी जी ने कड़ी सर्दी में रात गुजारी। उन्होंने अपने सामान को छुआ तक नहीं। इस घटना ने उनके जीवन का रास्ता ही बदल दिया। ये तो पूरी मानवता पर अन्याय है, मैं इसका मुकाबला करूंगा। गांधी जी ने ऐसे अन्याय के खिलाफ सत्य के हथियार का इस्तेमाल किया और आगे इसी हथियार को सत्याग्रह का नाम दिया। एक महिला गांधी जी के साबरमती आश्रम में आई। वहां पर चल रहे उपक्रमों को देखकर प्रभावित हुई और गांधी जी से संवाद स्थापित करने लगी। नमस्ते बापूजी। नमस्ते। बापूजी, जिस तरह से आप यह आश्रम चलाते हैं मैं बहुत प्रभावित हूँ। आप उन्हें क्या उपदेश देते हैं? मैं इन्हें कई उपदेश देता हूँ, मुख्यतः अपने बड़ों की आज्ञा का पालन और अपने कर्तव्य के प्रति आदर और श्रद्धा। इस बात को आप इतना महत्व क्यों देते हैं? आपने श्रवण की पितृभक्ति के बारे में कभी पढ़ा था? कुछ देखा है? याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने श्रवण कुमार के बारे में कहीं कुछ पढ़ा है। क्या आपको पता है, यह एक आज्ञाकारी लड़के की कहानी है जो अपने अंधे माता पिता के प्रति उसका प्रेम और उनकी हर एक आज्ञा का पालन, इस बात ने मेरे मन पर एक गहरा प्रभाव डाला है। मैं अपने शिष्य को यही उपदेश देता हूँ, ये बातें उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करती हैं। सच कहा आपने, हमें हमारे बड़ों द्वारा दिए गए शिक्षा का अनुपालन करना चाहिए और उन्हें अभी पीढ़ियों तक पहुँचाना चाहिए।
It's my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make this day's celebration happen. First of all, extend my most sincere thanks to the Almighty God for making today's event a resounding success. I need to mention my deepest sense of appreciation and also extend thanks to the management, headmistress, and to all the staff members and students for their willing and immense cooperation. An event like this cannot happen overnight. The wheels start rolling weeks ago. It requires a detailed micro-planning. Thank you everyone.